हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विश्व। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 10 फन विद मैग्नेट। तो आज की इस वीडियो से हमारा जो 10th चैप्टर है फन विद मैग्नेट, इसे स्टार्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहेली एंड बूजो वेंट टू अ प्लेस वेयर अ लॉट ऑफ वेस्ट material was piled into huge heaps. Something exciting was happening. A crane was moving towards the heap of junk. The long hand of the crane lowered a block over a heap. It then began to move. Guess what? Many pieces of iron junk were sticking to the block as it moved away. They had just read a very interesting book on magnets and knew immediately that there must be a magnet attached to the end of the crane that was picking up iron from the junkyard. You might have seen magnets, and magnets have even enjoyed playing with them. Have you seen stickers that remain attached to iron surface, like almirahs or the doors of refrigerators? In some pins holders, the pin seems to be sticking to the holder. In some pencil boxes, the lid fits tightly when we close it, even without a locking arrangement. Such stickers, pin holders, and pencils boxes have magnet fitted inside. If you have any one of these items, try to locate the magnet hidden in these. तो यहाँ पर क्या है कि जो पहेली और जो बूझो है वो एक ऐसी इंटरेस्टिंग जगह गए थे जहाँ पर क्या था, मतलब कि इंटरेस्टिंग जगह नहीं, एक जंक यार्ड में गए थे जहाँ पे खूब सारा जो कूड़ा नहीं होता, जंक वो होता है। तो वहाँ पे क्या किया गए और उन्होंने देखा कि एक क्रेन थी, उस क्रेन में एक एक ब्लॉक जुड़ा हुआ था। कोई एक ब्लॉक था काफ़ी बड़ा सा, वो उस क्रेन के आगे लगा हुआ था, लटका हुआ था, जैसे आप लोग फिगर में देख पा रहे हो। और वो सारा जंक और जितना भी आयरन पीस के जितने भी हैं वो सब अपनी तरफ घसीट रहा था। तो उसके बाद ये लोग उसको समझ नहीं पाए। फिर जब वो लोग घर पर आए तो उनको पता चला, उन्होंने पढ़ा कि वो जो ब्लॉक था वो एक मैग्नेट था। और वो मैग्नेट क्या करता है कि सारे जंक यार्ड से जितना भी आयरन या जंक है वो सब जंक यार्ड से निकाल लेता है। तो फिर ये तो खाली इसके कूड़ा निकालने की बात हो गई। और हम लोग जब मैग्नेट के साथ खेलते तो हम लोग को भी काफ़ी मज़ा आता है। जैसे कि जो कीज़ के जो टॉप वाली हेड होती है वहाँ पर होता है, और जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, फ्रिज, उनकी कीज़ में भी होता है यही क्या, मैग्नेट। तो ऐसी बहुत सारी जगह होती है, जैसे स्टिकर्स होते हैं अलमीरास में, जो अलमीरास में जितने भी स्टिकर्स चिपके हुए हैं, ये फ्रिज में जितने भी स्टिकर्स चिपके हुए आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या लिखा है, फ्रेश फ्रूट्स। तो ये फ्रेश फ्रूट्स क्या है, ये एक स्टिकर है और इसके पीछे क्या मैग्नेट लगा है, जिसकी वजह से ये उसमें चिपका होता है। ऐसे बहुत जगह होती है जहाँ पे मैग्नेट होता है। तो आप लोगों को ऐसी कुछ जगह ढूंढनी है जहाँ पर मैग्नेट लगा हुआ है। तो यहाँ से हमारा जो टॉपिक है हाउ मैग्नेट वर डिस्कवर्ड, इससे हम लोग को स्टार्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। It is said that there was a shepherd named Magnus who lived in ancient Greece. He used to take his herd of sheep and goats to the nearby mountain for grazing. He would take a stick with him to control his herd. The stick had a small piece of iron attached at one end. One day he was surprised to find that he had to pull hard to free his stick from a rock or a rock on the mountains. It seems as if the stick was being attracted by the rock. The rock was natural natural magnet, and it attracted the iron tip of the shepherd's stick. It is said that this is how natural magnets were discovered. Such rocks were
Such rocks were given the name magnetite, perhaps after the name of the after the name perhaps after the name of that shepherd. Magnetite contains iron. Some people believe that magnetite was first discovered at a place called Magnesia, the substance having the property of uh, attracting iron sorry attracting iron and attracting attracting iron are known attracting iron are now known as magnets. दिस इज हाउ द स्टोरी गोज इन एनी केस। यानी कि यहाँ पर क्या है कि एक लड़का था कि मैग्नेट कैसे डिस्कवर करे गए। तो पहले हम लोग सोचते हैं कि मैग्नेट डिस्कवर कैसे करे गए। तो एक लड़का था, उसका नाम उसका नाम था मैग्नेस, ये देखिए लिखा होगा मैग्नेस। तो वो एक शेफर्ड था। वो अपनी गोट्स और शिप को माउंटेन्स में आया था ग्रेजिंग कराने के लिए, घास चराने के लिए। फिर क्या हुआ कि उसके पास एक स्टिक थी, उसके आगे एक आयरन लगा था, और उस आयरन में क्या था कि वो आयरन के उसके टॉप में आयरन लगा था, जिसकी वजह से वो उसको काफ़ी अट्रैक्टिव लगती थी। फिर क्या हुआ कि वो एक दिन ऐसे बैठा हुआ था माउंटेन में। तभी क्या हुआ कि उसका जो स्टिक थी वो पत्थर को मतलब कि वो पत्थर में जाकर के अट्रैक्ट हो रही थी, चिपक रही थी। फिर उसने जाकर के उसको डिस्कवर करा, क्या, मैग्नेटाइट, मतलब कि उसका नाम मैग्नेस है। फिर इस अट्रैक्शन को क्या कहने लगे लोग, मैग्नेटाइट कहने लगे। फिर धीरे धीरे मैग्नेटाइट से मैग्नीसिस हो गया, फिर मैग्नीसिस से हट करके जिसे अब हम लोग कहते हैं मैग्नेट, वो मैग्नेट बना। ऐसे ही जो स्टोरी है मैग्नेट की वो ऐसी चली आ रही है। in any case people in any case people now have discovered that certain rocks have the property of attracting piece of iron. They also found that small pieces of these rocks have some special properties. They named the natural occurring materials magnets. Later on, the process of making magnets from piece of iron was discovered. These are known as artificial magnets. Nowadays, artificial magnets are prepared in different shapes. For examples, bar magnet, horseshoe magnet, cylindrical magnet, or ball-ended magnet. Figure 10.4 shows a few such magnets. तो यहाँ पे क्या होता कि पहले क्या होता था कि जो मैग्नेट्स अट्रैक्टिंग जो भी स्टोन्स होते थे इन्हें मैग्नेट कहा जाता था। पर अब क्या, अब तो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स जो होते हैं उन्हें बनाने लगे। तो उसमें क्या है कि वो मैग्नेट है वो काफ़ी अलग अलग तरीके के बनने लगे। जैसे कि जो हॉर्स का जो लेग होता है उसका हॉर्स शूज शेप, यानी हॉर्स के जूते का साइज जैसे बनता है, जैसे घोड़े की नाल वैसा, जैसे यू शेप वैसा, सिलेंड्रिकल आयरन, फ्लैट आयरन, बॉल एंडेड जिसकी एंड में बॉल होती है वो वैसा आयरन अब बनने लगा, जो कि फिगर 10.4 में आप लोग देख भी पा रहे होंगे। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पर एक एक्टिविटी है। चलो इसे भी हम लोग इस एक्टिविटी को इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं। टेक अ प्लास्टिक और अ पेपर कप, फिक्स इट ऑन अ स्टैंड विद द हेल्प ऑफ clamp as shown in figure 10.5. Place a magnet inside the cup and cover it with a paper so that the magnet is not visible. Attach a thread to a clip made of iron. Fix the other end of the thread at the base of the stand. Mind you, the trick involved here is to keep the length of the thread sufficiently short. Bring the clip near the base of the cup. The clip is raised in air without support like a kite. तो यहाँ पर क्या होता है कि आप लोगों को आप लोगों को एक बार ले लेना है, मतलब कि एक पेपर क्लिप होती है उसे आप लोगों को ले लेना है, जो कि पेपर क्लिप आप लोगों को पता होगी क्या होगा। और आपको एक क्लैम्प ले लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या,
आपको क्लैम ले लेने के बाद उसमें बीच में क्या मैग्नेट रख देना, जिससे क्या होगा कि जो पेपर क्लिप होगी वो अट्रैक्ट होने लगेगी और वो राउंड राउंड होने लगेगी और ऐसे उड़ने लगेगी जैसे कोई काइट नहीं होती, वैसे उड़ने लगेगी। ये एक्टिविटी 1 में था। अब यहाँ पे ये तो एक्टिविटी ख़त्म हो चुकी है। अब जो हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, इसे अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।